हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में देखो एक्चुअली दो पार्ट है, एक है ग्रेविटी और एक है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन मीन्स व्हाट? अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मासेस व्हेन प्लेस्ड एट एनी डिस्टेंस अपार्ट इन द यूनिवर्स। तो उस वक्त क्या होगा? दोनों बॉडी क्या करेगा? ऑलवेज दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन with which the two bodies attract each other in the universe is called gravitation. Now what is called gravity? Other part is called gravity. Gravity is the attraction between earth and any body in the universe. If there is attraction between earth and any body, then that attraction is called gravity, and attraction between any two masses is called gravitation. So generally in this chapter we will learn more part about the gravity and a few part regarding the gravitation. So gravitation means whenever two masses are placed at some distance apart, then according to Newton's laws of gravitation, what we can write? The force of attraction between the two masses when they are kept at any distance apart is directly proportional to each other and inversely proportional to the square of the distance between them. So in combining we can write F equal to G m1 m2 by r square. Here r is the mean distance. This r is called mean distance. So whenever some bodies are kept, the force between them is given by this one. F is the force of attraction. This force is always attractive in nature. Now यहाँ से देखो हम लोग ये याद रखेंगे कि F दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के साथ इनवर्सली वेरी करता है। लेकिन अच्छा यहां से एक और चीज देखो, ये दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। F12 and F21. So what is the relation between these two forces? The relation between these two forces is they are equal in magnitude but opposite in direction. If we talk about the magnitude of these two forces, that means the magnitude of these two forces are same. So we can write ठीक है। यहां से देखो एक चीज तुम लोगों से पूछता है कि अगर हम लोगों को बोला व्हाट इज द which force is greater if two bodies are kept at some distance apart, one is heavy other is lighter, तो कौन सा फोर्स ज्यादा होगा? तो दोनों में हम हमेशा याद रखेंगे both the bodies will attract each other with the same magnitude of force. मतलब दोनों का फोर्स हमेशा सेम होगा whatever may be the masses of the two bodies. So in that case we can say the ratio of these two forces will be always equal to 1. F12 या F21 इसका रेशियो हमेशा कितना आएगा? 1:1. ठीक है। नाउ देखो if two masses having some radius, two identical masses are kept at some distance apart. दोनों का रेडियस सेम है, इसका भी रेडियस r, इसका भी रेडियस r, इसका भी मास m, इसका भी मास m, लेकिन दोनों को रखा गया है at any distance n times of r, at n times of r. n here is any integer, it may be equal to 2r, minimum it will be 2r, कब? जब दोनों को हम लोग टच कर देंगे, when two spheres are kept in contact, the minimum distance between these two will be equal to इसका रेडियस प्लस इसका रेडियस। लेकिन उससे ज्यादा कोई भी डिस्टेंस हो सकता है, 3r, 4r, 5r. Remember one thing, here r is not the mean distance, that is not the distance between the two masses. Here r is the radius of each sphere. अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ रहा और यहां से तुमसे पूछा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू मासेस हाउ डिपेंड्स ऑन r, r के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे F इक्वल टू
G m by distance square, mean distance, which is equal to nr. So it becomes n square r square. Here n is any integer. It may be 1, 2, 3, 4, whatever, but it is a constant. लेकिन यहाँ से हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि एक r स्क्वायर के साथ इनवर्सली वेरी कर रहा है, because here r is not the mean distance, r is the radius of the sphere. अगर radius of the sphere दिया हुआ तो हम लोग यहाँ पर से मास को फर्दर ब्रेक करेंगे, ब्रेक करके उसको वॉल्यूम इनटू डेंसिटी में ब्रेक करेंगे, रिड्यूस्ड फॉर्म लेकर के आएंगे. जब रिड्यूस्ड फॉर्म आ जाएगा तो फिर वहां से हम लोग बोलेंगे कि एफ आर के साथ कैसे वेरी कर रहा है. ठीक है, तो एम को हम लोग ब्रेक करते हैं, एम इंटू एन स्क्वायर विच इज इक्वल टू, वी कैन राइट वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो. सो इट बिकम्स, देखो एक लाइन सिर्फ यहां दिखला रहे हैं, जी एज इट इज छोड़ दो, एम स्क्वायर होगा दोनों का प्रोडक्ट, एम स्क्वायर की जगह लिखते हैं हम लोग 4/3 पाई आर क्यूब, आर इज द रेडियस ऑफ ईच स्फीयर, इनटू डेंसिटी इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर इनटू आर स्क्वायर. एन का कोई भी वैल्यू हो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 व्हाटएवर, बट इट इज अ कांस्टेंट. 4/3 पाई इंटू रो विच इज ऑल्सो कांस्टेंट. तो यहाँ आर क्यूब के ऊपर स्क्वायर आएगा, नीचे में आर स्क्वायर है, नीचे में आर स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर है. तो यहां से आएगा आर टू द पावर 6 बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया तो आर टू द पावर 4 बचा हुआ है. सो हियर वी कैन राइट एफ इज प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 4 वॉट एवर मे बी द वैल्यू ऑफ एन. अगर तुमको आर मीन डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा तो ऑलवेज याद रखना क्या होगा, एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर. दिस इज द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. बट इफ टू आइडेंटिकल masses of same radii are kept at some distance apart, the distance between the two will be minimum 2 or maximum कुछ भी हो सकता है. In that case, the force between them is directly proportional to the fourth power of the radius. Okay? As for example, हम लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह का दिया हुआ था, इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ था, टच करके रखा हुआ है, ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया, तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा. तो इससे दूर भी रखा हुआ रह सकता है, इससे मिनिमम इतना डिस्टेंस, मिनिमम तो 2r होगा, है ना. तो अगर मिनिमम 2r होगा, मैक्सिमम व्हाटएवर कुछ भी, लेकिन इन दिस केस f हमेशा याद रखना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द डिस्टेंस, सॉरी फोर्थ पावर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर. ओके, ठीक है. तो ये हम लोग ग्रेविटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन दे सकता है. अगर हम लोग बात करें ग्रेविटी का, तो ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, ग्रेविटी मीन्स attraction between earth and any mass. किसी भी मास के साथ अर्थ का अट्रैक्शन अगर हम लोग कंसीडर करेंगे, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी. तो इन ग्रेविटी ऑल्सो वी कैन से बोथ द बॉडीज अर्थ एंड द बॉडी विल अट्रैक्ट ईच अदर विद द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, है ना. तो अब यहां पर से देखो, अगर अर्थ के साथ किसी बॉडी का अट्रैक्शन कंसीडर करते हैं हम लोग, दिस इज सपोज अर्थ, दिस इज एनी मास. अर्थ का टोटल मास हम लोग ऑलवेज कंसीडर करेंगे एट द सेंटर ऑफ द मास. तो यहां पर ये डिस्टेंस हो गया स्मॉल आर, दिस इज सपोज is capital R, radius of the earth, this is the small h, height of the body from the surface of the earth. तो यहां से इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा F इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m बाई स्मॉल r स्क्वायर बाई स्मॉल r स्क्वायर. तो यहां से हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ और एट एनी हाइट अगर कैलकुलेट करेंगे, ऑन द अर्थ सरफेस अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, ऑन द अर्थ सरफेस स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R. तो यहां से हम लोग अगर पुट करेंगे G कैपिटल M स्मॉल m बाई कैपिटल R स्क्वायर, दिस फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो ये m कैंसिल हो गया. यहां से हम लोग G के वैल्यू पाते हैं क्या चीज, कैपिटल M कैपिटल G बाई कैपिटल R स्क्वायर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन जो हम लोग बहुत जगह यूज करेंगे इन केस ऑफ ग्रेविटी. ओके, तो G इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M बाई R स्क्वायर, ये एक रिलेशन होगा. और Gm इक्वल टू Gr स्क्वायर,
यहां से ये हो गया इन टर्म्स ऑफ कैपिटल जी, स्मॉल जी एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। समटाइम्स तुम लोगों का कैपिटल जी स्मॉल जी का रिलेशन पूछता है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ द अर्थ, तो उसको भी हम लोग जान करके रखें, जरूरत पड़ेगा। तो इसको हम लोग मास को अगर ब्रेक कर देंगे, मास को अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे बोलो, 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो इक्वल टू GR²। तो यहां से हमारा रिलेशन क्या आएगा, 4/3 पाई रो GR इक्वल टू G। ये रिलेशन भी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हम लोग बहुत जगह यूज करेंगे। ये रिलेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी होगा, स्मॉल जी का वैल्यू। ये रिलेशन इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ द अर्थ होगा, स्मॉल जी का वैल्यू। दोनों को हम लोग बहुत जगह यूज करेंगे, हमेशा इसको याद रखना। अब देखो, अगर तुमको बोल दिया क्वेश्चन में रेडियस ऑफ द अर्थ कीपिंग मास कांस्टेंट बढ़ता है या कम होता है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। अगर वेरी स्मॉल चेंज हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल M बाई R²। तो यहां से परसेंटेज चेंज के लिए रिलेशन हम लोगों के पास क्या आ जाता है, -2 del R बाई R परसेंटेज चेंज। दैट मीन्स रेडियस ऑफ द अर्थ में अगर परसेंटेज चेंज होता है वेरी स्मॉल, देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल ऑल्सो चेंज बाई वेरी स्मॉल परसेंटेज। वो परसेंटेज चेंज निकालने के लिए हम लोग को यहाँ पर माइनस साइन है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, रेडियस अगर इंक्रीज करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज कर जाएगा। रेडियस ऑफ द अर्थ अगर इंक्रीज करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज करेगा, और ये अगर डिक्रीज करता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज करेगा। बट इन दिस केस वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट द मास ऑफ द बॉडी विल बी कांस्टेंट। ठीक है, मास अगर कांस्टेंट होता है, m अगर कांस्टेंट होता है, तब ये रिलेशन हम लोग लिखेंगे। So radius of the earth suppose 1% अगर shrink कर जाएगा, तो acceleration due to gravity from this relation we can say will be increases by 2%। अगर radius of the earth expand करता है by 1%, then acceleration due to gravity on the surface of the earth will decreases by 2%। ओके, तो ये रिलेशन हो गया हम लोगों का वेरी स्मॉल चेंजेस के लिए। लेकिन हमेशा वेरी स्मॉल चेंज दिया वो ये नहीं हो सकता है। हो सकता है कि रेडियस ऑफ द अर्थ में लार्ज चेंज हुआ, सपोज रेडियस ऑफ द अर्थ बिकम्स हाफ ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू कीपिंग द मास कांस्टेंट, उस वक्त एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इन दैट केस वी कैन राइट इफ रेडियस बिकम्स हाफ कीपिंग द मास कांस्टेंट, इफ रेडियस इज हाफ कीपिंग मास कांस्टेंट, इन दैट केस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, g इक्वल टू हम लोग लिखेंगे कैपिटल G कैपिटल M बाई R की जगह में R/2 का होल स्क्वायर होगा, दिस इज R/2 होल स्क्वायर। तो ये 4 ऊपर चला जाएगा एंड इट बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ g। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ जिस तरह से चेंज होगा उसी तरह से वेट ऑफ एनी बॉडी भी चेंज हो जाएगा। अगर पहले मान लो वेट ऑफ द बॉडी रखा हुआ था W, तो अभी न्यू वेट कितना होगा, एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 4 टाइम्स, सो वेट ऑल्सो बिकम्स 4 टाइम्स। ठीक है, अब यहां से हम लोगों को g का वैल्यू किस तरह से वेरी करता है ये पूछेगा। तो वी नो द वैल्यू ऑफ g डिपेंड्स ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। हाइट के साथ चेंज होता है, डेप्थ के साथ चेंज होता है, और डेली रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से चेंज होता है। तो पहले हम लोग देखते हैं हाइट के साथ किस तरह से चेंज होता है। तो देखो वेरिएशन ऑफ g विथ हाइट कैसे होता है। पहले हम लोग हाइट की वजह से वेरिएशन कंसीडर करें। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इफ अ बॉडी इज केप्ट, इन दैट केस द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज गिवन बाय g इक्वल टू कैपिटल Gm by R²। व्हेन द बॉडी इज लिफ्टेड बाय सम हाइट, इट इज सपोज लिफ्टेड थ्रू अ हाइट h, in that case obviously as the distance increases the acceleration due to gravity will also decreases। So suppose the new acceleration due to gravity at any height is given by Gm by capital R plus small r whole square। तो हम लोगों को डिवाइड करने से ये रिलेशन मिलता है। यहां से अगर हम लोगों को हाइट दिया हुआ हो रहेगा एट एनी हाइट व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हाइट का वैल्यू पुट करेंगे, g1 का वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन हम लोग इसको क्या करेंगे, फॉर्मूला को और मिनिमाइज करो, एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर के आओ, सो दैट कैलकुलेशन किस तरह से हम तुम लोगों को इससे पहले भी बताएं। हम लोगों को नीट या मेंस के लिए क्वेश्चन करने के लिए टाइम लिमिट जो रहता है इज ओनली 30 सेकेंड। 30 सेकेंड के अंदर हर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखो अगर हम लोग लेट कर लेंगे h इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ r, कभी भी दिया हुआ रहा
n times of r, that is 1r, 2r, 3r, 4r, like this. जिस तरह से अगर क्वेश्चन दिया हुआ रहा तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? h इक्वल टू एन आर पुट करो, एन आर पुट करो, यहां से क्या आ जाएगा बोलो? तो r कॉमन लिए, कैंसिल आउट हो गया, so it becomes 1 by n plus 1 whole square. So directly we can write the acceleration due to gravity at any height above the surface of the earth is simply given by g1 equal to g divided by n plus 1 whole square. For example, suppose you have given h equal to r. What is the value of acceleration due to gravity at a height equal to the radius of the earth? So what we have get the value of n here in this equation. So n equal to यहाँ पर कितना है? 1 है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाएगा? इसमें पुट कर दो, इन की जगह 1 पुट कर दो, तो g1 का वैल्यू कितना हो गया? g डिवाइडेड बाई 4. ठीक है, तो g डिवाइडेड बाई 4 मीन्स व्हाट? इट इज 25% ऑफ g. 25% ऑफ g. So at what height, क्वेश्चन अगर दिया at what height above the surface of the earth the value of acceleration due to gravity becomes 25% of g, then our answer will be equal to the radius of the earth. Suppose तुमको बोल दिया h equal to at a height suppose r by 2, what will be the value of the acceleration due to gravity? तो हम लोगों का आंसर क्या होगा? The acceleration due to gravity at a height 1 by 2, half of the radius of the earth, is given by here n equal to how much? 1 by 2, है ना? तो n का जो वैल्यू है वो सिर्फ यहाँ पर पुट कर दो, तो यहाँ से हम लोगों का वैल्यू कितना मिल जाएगा? g1 equal to g divided by n equal to here half plus 1, which is 3 by 2 whole square. 3 by 2 whole square means it is 4 by 9 times of g. g1 का वैल्यू हमको कितना मिल जाएगा? 4 by 9 times of g. So at any height अगर हमको acceleration due to gravity find करने के लिए देगा, we can directly use the relation. What is the relation? g1 equal to g divided by n plus 1 whole square. You just put the value of n and get the result. At any height h equal to 4r, n equal to 4 put करो, 4 plus 1 5 का whole square 1 by 25 हो जाएगा, g by 25 हो जाएगा. ठीक है, तो यहां से हम लोग for any value g का वैल्यू निकाल सकते हैं, whatever may be the height. तो देखो अगर रिवर्स क्वेश्चन दिया हुआ रहा कि कितना हाइट ऊपर जाने के बाद the value of acceleration due to gravity becomes 25% of g, or it becomes 49% of g, or it becomes 50% of g, like this. इस तरह का अगर क्वेश्चन दिया हुआ रहा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? देखो, if suppose given as g1 equal to p% of g, p is any number, कोई भी नंबर हो सकता है, 25%, 10%, 30%, 40%, whatever. तो हम लोग यहाँ से g1 के बराबर अभी देखे हैं g डिवाइडेड बाई n प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है, इक्वल टू p% मीन्स p बाई 100 इंटू g कैंसिल आउट हो गया, n प्लस 1 इक्वल टू इसके ऊपर रूट डालो, रूट p बाई 10 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, n प्लस 1 इक्वल टू रूट 10 बाई रूट p, और 1 को वहां ले गए, ये रिलेशन मिल गया. तो ये हम लोगों का डायरेक्ट अब शॉर्टकट हुआ, यहाँ से हम लोग क्वेश्चन डायरेक्ट बना सकते हैं. As we know, h equal to height equal to n times the radius of the earth, है ना? तो अब सपोज हमको क्वेश्चन कुछ भी दिया हुआ है, कितना हाइट ऊपर लेकर के जाना पड़ा, फाइंड करो. अगर g का वैल्यू डिक्रीज करके एनी परसेंटेज दिया हुआ रह सकता है, वट एवर p इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल p इक्वल टू और g1 इक्वल टू, सपोज g1 इक्वल टू 25% of g, 25% of g. Okay, so at what height above the surface of the earth the acceleration due to gravity becomes 25% of g, 25% of g. तो हम लोग क्या लिखेंगे बोलो? यहाँ पर p इक्वल टू 25 पुट करो, n का वैल्यू कितना आया? 10 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1 इक्वल टू 1, therefore h इक्वल टू r. So at a height equal to the radius of the earth the value of acceleration due to gravity becomes 25% of g. दूसरा एग्जांपल लेते हैं. At what height above the surface of the earth value of acceleration due to gravity becomes 36% of g, 36% of g. तो यहाँ पर p का वैल्यू क्या आया? 36 आया. तो हमारा n का वैल्यू कितना आएगा? 10 डिवाइडेड बाई
36 इज 6 माइनस 1। ठीक है, तो यहां से हम लोगों को क्या मिलता है बोलो, 5/3 माइनस 1, 5, ये 3 लगाएं, कितना मिल गया 2/3। सो हाइट कितना आ जाएगा हम लोगों का, हाइट विल बी इक्वल टू 2/3 ऑफ द रेडियस। ठीक है, तो यहां से हम लोगों का h का वैल्यू कितना आ जाएगा, दिस इज h इक्वल टू 2/3 इंटू r। ठीक है, तो अगर कभी क्वेश्चन दिया हुआ रहा कितना हाइट ऊपर जाने के बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिड्यूस्ड कर जाता है, 36% होगा, 25% होगा, 49% होगा, इस तरह का ही क्वेश्चन दिया हुआ रहता है जिसका डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सके हम लोग। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज देता है, रिड्यूसेस टू एंड रिड्यूसेस बाई। अगर सपोज दिया हुआ है फाइंड h एट विच G1 reduces to, इसको कैंसिल कर दो, reduces to और reduces by, the value of G reduces by, the value of G suppose reduces by, ये हम लोग लेते हैं G reduces by 36%, G reduces by 36%, reduces by and reduces to, इसका मीनिंग क्या है, रिड्यूसेस टू का मतलब हम लोग जानते हैं कि फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा, 36% हो जाएगा। लेकिन अगर दिया हुआ रहा रिड्यूसेस बाय 36%, मतलब 36% कमेगा, तो फाइनल वैल्यू होगा कितना, 100 से 36 माइनस कर देंगे हम लोग, तो यहां से हमारा G1 का वैल्यू निकल जाएगा कितना, 100 माइनस 36 विच इज इक्वल टू 64% ऑफ G। तो यहां से अब हमको P का वैल्यू निकल गया, P का वैल्यू कितना आया 64, तो डायरेक्ट n का वैल्यू निकाल लो। फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, हमेशा याद रखना। यहां से हम लोग 10 डिवाइडेड बाई p का वैल्यू कितना आया 8 माइनस 1, तो ये आ गया 4, 5/4, तो -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4। n का वैल्यू निकल गया, हाइट कितना हुआ बताओ, n इंटू आर, n इंटू आर यही होता है ना, n का वैल्यू यहाँ पर लगा दो, h इक्वल टू r/4। ठीक है, तो अगर हम लोगों को हाइट दिया हुआ रहेगा और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला, तो हम लोग फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, G1 इक्वल टू G डिवाइडेड बाई n+1 का होल स्क्वायर। वहां n का वैल्यू दिया हुआ है, पुट करेंगे, G1 का वैल्यू पता चल जाएगा। और अगर हमको G1 का वैल्यू कितना घट रहा है, ऊपर जाएंगे जितना उतना कमता जाएगा, तो G1 का वैल्यू कमते कमते कितना हो गया, वो अगर दिया हुआ रहा, तुमसे पूछेगा हाइट बता दो, तो n का वैल्यू निकालेंगे। n निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला में पुट करो, you will get the value of n, then the height of the body from the surface of the earth will be equal to n into r। n का वैल्यू पुट करो, यहां से पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर हाइट वेरी स्मॉल हुआ तो क्या होगा, ये हम लोग जानते हैं, if h is small इन कंपेयर टू आर, h का वैल्यू r के कंपेरेटिवली अगर बहुत छोटा हुआ, तो फिर हम लोग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी हाइट 1 इंटू 2h/r, g इंटू 1 माइनस 2h/r, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन यहाँ एक रेस्ट्रिक्शन है, वो रेस्ट्रिक्शन क्या है याद रखना, रेस्ट्रिक्शन ये हो रहा है कि h का वैल्यू वेरी स्मॉल हुआ तो ही हम इसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। अदरवाइज तुम लोगों का फॉर्मूला क्या बताएं हम, G1 इक्वल टू ऑलवेज यूज करना G डिवाइडेड बाई n+1 होल स्क्वायर, वेयर h इक्वल टू n टाइम्स ऑफ r। n के टर्म्स में अगर r दिया हुआ रहेगा, हाइट r के टर्म्स में अगर दिया हुआ रहा 1r, 2r, 3r, 4r और r/2, r/3, r/4, r/5, तो सिर्फ n का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे इसमें, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ G1। ओके, और उसका उल्टा क्या बताएं हम लोग, n इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई √p -1। ये कब होगा, जब कितना परसेंट कम हो गया ये दिया हुआ रहेगा तो यूज करेंगे। दैट इक्वेशन इज वैलिड फॉर एनी वैल्यू ऑफ h, बट देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन, दिस इज वैलिड फॉर ओनली स्मॉल वैल्यूज ऑफ h। ये याद रखना है इसमें। तो ये रिलेशन हम लोग उसी वक्त यूज करेंगे जब वेरी स्मॉल वैल्यूज ऑफ h दिया हुआ रहा। ठीक है, तो यहां से हम लोगों को एक और चीज पता चलता है, देखो weight of any body is given by weight of any body W इक्वल टू, तो वेट
we can write is proportional to g ना. Weight of any body again depends on the value of g. g जैसे चेंज होगा वेट भी वैसे ही चेंज होगा बिकॉज मास इज कांस्टेंट. तो अगर g का वैल्यू ऊपर जाने से फ्रॉम हाइट जैसे अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे हम लोग, द वैल्यू ऑफ g will decreases. As the value of g will decreases, the weight of the body will also decreases. So new value of the weight, if you are asking to find at any height, at a height h above the surface of the earth, suppose W1 हो गया proportional to G1, न्यू वैल्यू कितना आएगा G1 हो जाएगा. तो अगर हमको G1 फाइंड करने के लिए बोलेगा W1 by W डिवाइड करो G1 by G मिलेगा. यहां से हम लोग क्या मिलेगा बोलो, 1 by n plus 1 होल स्क्वायर, 1 by n plus 1 होल स्क्वायर. तो ये रिलेशन हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए भी वैलिड होगा एंड दिस रिलेशन विल आल्सो बी वैलिड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वेट ऑफ एनी बॉडी. ओके, तो हम लोगों को यहां से बोलेंगे W1 by W इक्वल टू G1 by G इक्वल टू 1 by n plus 1 होल स्क्वायर. अगेन हियर n क्या है, h इक्वल टू n इंटू r. ये जो रिलेशन हम लोगों के पास है ये हमेशा यूज करना, h इक्वल टू n इंटू r. ठीक है. सपोज अ बॉडी वेट्स, क्वेश्चन दिया हुआ है a body weighs 72 kg weight on the earth's surface. Kg weight is the gravitational unit. Kg weight is the gravitational unit of weight. ठीक है. तो अगर एक बॉडी अर्थ सरफेस के ऊपर 72 kg वेट करता है, what it would weigh at a height equal to the radius of the earth. या what it would weigh at a height twice of the radius of the earth. कुछ भी दे सकता है. ठीक है. What it would weigh at h equal to r इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ. इतना हाइट ऊपर लेके चले जाओ, वहां पर वेट कितना होगा बता दो. तो वहां पर का वेट हम लोग कैसे बताएंगे, दैट वेट विल बी इक्वल टू, ये W को यहां मल्टीप्लाई कर देंगे. W इज द वेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. So at any height, the weight of the body can be calculated by the formula W divided by n plus 1 whole square. Simple, बहुत आराम से हम लोग कर सकते हैं. देखो कंफ्यूज नहीं होना है. अगर हम लोग बेसिक थ्योरी वेरी इजीली अगर अंडरस्टैंड करते हैं, समझ जाते हैं, तो फिर इस तरह का जितना क्वेश्चन है ग्रेविटेशन का देखना, मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग बहुत आराम से बनाएंगे. 30 सेकेंड टाइम लिमिट के अंदर बनाएंगे. कैसे बनाएंगे, देखो ये सब छोटा छोटा फॉर्मूला है. प्रैक्टिस करते करते याद होगा. प्रैक्टिस करते रहेंगे, फॉर्मूला लर्न होता रहेगा, क्वेश्चन देखते रहेंगे, पुट करेंगे, बनाते रहेंगे. ठीक है. तो यहाँ से W का वैल्यू कितना बोला है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ 72. n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, h इक्वल टू r मीन्स n इक्वल टू 1. पुट करो 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर करते हैं 4 होगा. 4 के लिए डिवाइड मारो इसको. 72 by 4 कितना होगा, 18 kg weight. 18 kg weight. So the weight of the body at a height equal to the radius of the earth becomes equal to only 18 kg weight if it weighs on the surface of the earth 72 kg. सेम प्रिंसिपल पर बेस करके इस साल 2020 में क्वेश्चन आया था. एक बॉडी का वेट दे दिया है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, कोई भी वेट दिया हुआ हो, व्हाट विल बी द वेट ऑफ द बॉडी एट एनी हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो जो हाइट दिया हुआ रहेगा वो देखना हमेशा इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ दिया हुआ रहेगा. h इक्वल टू 1r 2r 3r 4r कुछ भी वैल्यू दिया हुआ है, जस्ट गेट द वैल्यू ऑफ n फ्रॉम दैट रिलेशन एंड पुट इट हियर. n का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर. समझ में आ रहा है. तो ये हम लोगों के पास वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन यहां से आया. G1 का वैल्यू निकालने के लिए और वेट का वैल्यू निकालने के लिए, एज वेट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ G, जिस तरह से G वेरी करेगा उस तरह से वेट ऑफ द बॉडी भी चेंज होता रहेगा. ठीक है. तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसके ऊपर बेस करके क्वेश्चन देता है. अब देखो दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या आता है. देखो अब हम लोगों को कंपेयर करने के लिए देगा द वैल्यू ऑफ G और द वेट ऑफ एनी बॉडी
ऑन द सरफेस ऑफ सेम प्लैनेट हम लोग कंपैरिजन देखें, ऑन द सरफेस ऑफ सेम प्लैनेट कंपेयर करने के लिए देगा तो क्या देगा, हाइट की वजह से कैसे चेंज हो रहा है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ कुछ हाइट ऊपर लेकर के चले गए, हाउ द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस, हाउ द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस, हाउ द वेट ऑफ अ बॉडी चेंजेस। तो वहां से हम लोग एक रिलेशन देखें, वेट या जी का वैल्यू चेंज कैसे हो रहा है। द फॉर्मूला इज G1 इक्वल टू G डिवाइडेड बाई n+1 होल स्क्वायर, और W1 इक्वल टू वेट एट एनी हाइट इक्वल टू W डिवाइडेड बाई n+1 का होल स्क्वायर। जस्ट द वैल्यू ऑफ n पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर। देख रहे हो कितना जल्दी हम लोगों का हो रहा है। ये क्वेश्चन हम टाइम लिमिट 30 सेकेंड रखे हैं, लेकिन प्रैक्टिस करते करते तुम लोग देखना कि उसको हम लोग और कम टाइम में कर सकते हैं। 5 to 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को हम लोग खत्म कर देंगे। इसीलिए देखना हम लिखे हुए हैं कि 160 प्लस फिजिक्स में स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है, वेरी इजीली कर सकते हो तुम लोग। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का जरूरत है, थोड़ा सा प्रैक्टिस का जरूरत है। उसके बाद जैसे मेरे क्लासेस हो रहा है उसको थोड़ा ध्यान से देखो, फिर देखना तुम लोग फिजिक्स में आराम से 160 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, ये अगर हम लोगों को कंपेयर करने के लिए दे दिया, how the value of g acceleration due to gravity or the weight of any body can be compared on any other planet if the weight or the value of g on the surface of the earth is given. So as we know, on the surface of the earth acceleration due to gravity is given by gm by r square, and on any other planet the value of acceleration due to gravity is given by, on the planet of that surface it is given by रेडियस इज r1, मास ऑफ द प्लैनेट इज सपोज m1। ठीक है, तो यहां से क्या लिखेंगे हम लोग, दिस वन इज द रिलेशन। ठीक है, तो अब यहां से देखना, या तो कंडीशन में क्या दिया हुआ रहेगा, या कंडीशन में दिया हुआ रहेगा, अच्छा जी का वैल्यू तो सेम होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, या तो कंडीशन में दिया हुआ रहेगा दूसरा प्लैनेट का अर्थ के साथ मास में क्या रिलेशन है, दूसरा प्लैनेट का अर्थ के साथ मास में क्या रिलेशन है, रेडियस के साथ क्या रिलेशन है। अगर मास के साथ रिलेशन नहीं दिया हुआ होगा तो फिर देखना डेंसिटी के साथ रिलेशन दिया हुआ रहेगा। तो डेंसिटी का क्या रिलेशन होता है वो भी यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। मास की जगह हम लोग ब्रेक करेंगे अगर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो ये आएगा कैपिटल जी वॉल्यूम 4/3 पाई r1 क्यूब इंटू रो डिवाइडेड बाई r1 स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल जाता है बोलो, द रिलेशन वी विल गेट, जो इससे पहले भी हम तुम लोगों को देखना है, डेंसिटी और रेडियस ऑफ द अर्थ के साथ क्या रिलेशन था, 4/3 पाई रो कैपिटल जी इंटू r1। सिमिलरली यहां से भी हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 4/3 पाई रो कैपिटल जी r। ठीक है, तो अगर हमको वेट या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कंपेयर करने के लिए दे दिया ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड ऑन द सरफेस ऑफ एनी अदर प्लैनेट। पहले हम लोग क्या देखें, अर्थ के ही सरफेस पर कंपेयर कर रहे थे, सिर्फ सरफेस से ऊपर चले जा रहे हैं, तो वेट कैसे चेंज होगा, जैसे जी चेंज होगा, तो उसका रिलेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब प्लैनेट के लिए कंपेयर करने के लिए देगा, इस प्लैनेट में ये वैल्यू है, अर्थ के सरफेस पर ये वैल्यू है, दूसरे प्लैनेट पर चले जाएंगे तो क्या वैल्यू आएगा। तो फिर हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे, देखो वेट लिखो W1/W या G1/G लिखो, एज वेट इज प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ जी, मास विल नेवर बी चेंज। ठीक है, तो G1/G इक्वल टू देखो इन टर्म्स ऑफ मास अगर दिया हुआ रहा तो रिलेशन आएगा m1/m डिवाइड किए m1/m r/r1 का होल स्क्वायर, r/r1 का होल स्क्वायर। ठीक है, या फिर हम लोगों को क्या दिया हुआ रहेगा, इसी के साथ एक और रिलेशन बना लेते हैं हम लोग। मास अगर नहीं दिया हुआ रहा तो डेंसिटी दिया हुआ रहेगा, अगर डेंसिटी दिया हुआ रहेगा तो हमारा रिलेशन देखो यहां से बनेगा, m1 की जगह हम लोग ये पुट करेंगे। ठीक है, इसको इससे डिवाइड कर दो, हमारा रिलेशन क्या आ जाएगा बोलो, दिस डेंसिटी सपोज ρ1, डेंसिटी सपोज ρ1, अर्थ का डेंसिटी रो कंसीडर किए हैं, प्लैनेट का डेंसिटी ρ1 कंसीडर किए, तो रिलेशन हमारा आ जाएगा ρ1/ρ इंटू r1/r। तो दिस इज द रिलेशन देखो प्रैक्टिस हम लोगों को ये करना है कि हमारा रिड्यूस्ड फॉर्म जो आ रहा है वो प्रैक्टिस करते करते हमेशा याद हो जाएगा। प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे, रिड्यूस्ड फॉर्म, बेसिक ट्रिक्स जो रहेगा, बेसिक फॉर्मूला जो रहेगा, जिसके ऊपर बेस करके तुम्हारा क्वेश्चन इस तरह का जितना भी है वी कैन सॉल्व विद इन 10 to 15 सेकेंड। कैसे, देखो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ दिया हुआ है, किसी दूसरे प्लैनेट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर कैलकुलेट करने को देता है तो G1/G इक्वल टू कितना होगा, मास के टर्म्स में दिया है तो इसको पुट करेंगे, डेंसिटी के टर्म्स में दिया हुआ है तो इसको पुट करेंगे,
लेकिन दोनों ही g का वैल्यू, वेट और g डायरेक्टली वेरी करता है। तो वेट का रेशियो जो होगा, g1 का रेशियो यही होगा। सपोज हमको दे दिया है अ बॉडी वेट्स 100 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, व्हाट इट वुड वेट ऑन द सरफेस ऑफ एनी प्लैनेट हुज मास इज डबल द मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस इज डबल द रेडियस ऑफ द अर्थ। सपोज ये देता हुआ है, तो मास को हम लोग यहाँ पर रिप्लेस करेंगे 2m, रेडियस को यहाँ रिप्लेस करेंगे 2r, so it becomes r by 2r, that is 1 by 4, and this is 2m by m means 2. 2 into 1 by 4 is half, so the value of weight becomes w by 2. ठीक है, अगर क्वेश्चन इस तरह से देता है हम लोगों का, डायरेक्ट यहां से बनाएंगे। किसी दूसरे प्लैनेट पे चले गए, उसका मास m1 ट्वाइस ऑफ m दिया हुआ है, उसका रेडियस कितना दिया हुआ है, ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो अगर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ सरफेस पर 100 न्यूटन वेट ऑफ एनी बॉडी होता है, तो उस प्लैनेट के सरफेस पर कितना होगा बता दो। तो हमारे पास रिलेशन क्या है, मास वाला रिलेशन यूज करेंगे। तो W1 by W इक्वल टू M1 by M इंटू R by R1 होल स्क्वायर। तो यहां पुट कर दो, M1 का वैल्यू हो गया 2M, R1 का वैल्यू हो गया 2R, 2R डिवाइडेड बाई 2R, यहां से कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू 1 by 2, so W1 विल बी इक्वल टू W by 2। ठीक है, W का पुट करो वैल्यू, यू विल गेट द आंसर 50 न्यूटन। देखो, वेरिएशन ऑफ G ड्यू टू द डेप्थ, डेप्थ की वजह से वेरिएशन ऑफ G का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज वेरी सिंपल। हम लोग जानते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर D कंसीडर करेंगे, तो D डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ जाने के बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज कर जाता है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू D डेप्थ अंदर जाने से 1 माइनस स्मॉल d बाई आर ये होता है। इसके अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि D का वैल्यू स्मॉल होने से यूज करेंगे या D का वैल्यू लार्ज होने से यूज करेंगे। फॉर एनी वैल्यू ऑफ D यू कैन यूज दिस रिलेशन, फॉर एनी वैल्यू ऑफ D यू कैन यूज दिस रिलेशन। ओके, तो यहां से देखो एट द सेंटर हम लोगों को क्या बोलेगा, at the center the depth will be equal to r, so the acceleration due to gravity at the center of the earth becomes 0, so any body at the center of the earth becomes weightless because there is no attraction, no gravity at the center of the earth। ठीक है, अगर हमको बोला at what depth below the surface of the earth the acceleration due to gravity becomes 25% of g, यहां से हम लोग बोल सकते हैं d का वैल्यू बढ़ाएंगे कि acceleration due to gravity का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो अगर हमको बोल दिया find D where G1 becomes 25% of G, 25% of G, तो क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, फॉर एनी वैल्यू वी कैन यूज, फॉर एनी वैल्यू ऑफ द डेप्थ वी कैन यूज द रिलेशन। डायरेक्ट इसमें पुट कर देंगे हम लोग, G1 का वैल्यू कितना हो गया, 25% ऑफ G मीन्स G by 4, तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, G by 4 इक्वल टू G इंटू 1 माइनस D by R, तो G का वैल्यू यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, D by R इक्वल टू 1 माइनस 1 by 4 विच इज इक्वल टू 3 by 4, so D will be equal to 3R by 4। ठीक है, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट रिलेशन निकाल सकते हैं। at what depth the value of acceleration due to gravity becomes 25% of G, डायरेक्ट पुट करेंगे इसमें, बिकॉज देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन इन दिस इक्वेशन कि D का वैल्यू कम होगा तो यूज करेंगे, D का वैल्यू ज्यादा होगा तो यूज करेंगे, फॉर एनी वैल्यू यू कैन यूज दिस रिलेशन। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग यहां से सॉल्व करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हाइट की बात दी हुई होगी, अगर हाइट के बारे में दिया हुआ होगा कि हाइट दिया हुआ है, तो हाइट वेरी स्मॉल रहने से ही हम लोग G का वैल्यू 1 माइनस 2h बाई आर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अदरवाइज G1 इक्वल टू G डिवाइडेड बाई n प्लस 1 का होल स्क्वायर हम लोगों के पास फॉर्मूला है, डायरेक्ट उससे बना लेंगे। ठीक है, सपोज कभी इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहा तो याद रखना, h हाइट ऊपर चले गए, d डेप्थ नीचे चले गए, यहाँ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम दिया हुआ है, प्रोवाइडेड h इज वेरी स्मॉल इन कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, h इज वेरी वेरी स्मॉल
इन कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। डी व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाइट अगर वेरी स्मॉल हुआ तो एट व्हाट हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड एट व्हाट डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी सेम। अगर वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम होगा तो वेट ऑफ एनी बॉडी भी सेम होगा। तो उस हाइट और डेप्थ के बीच में क्या रिलेशन है, तो रिलेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे बोलो, G1 इक्वल टू हम लोग जानते हैं G इंटू 1 माइनस 2h बाई आर, और G2 इक्वल टू डेप्थ के लिए जानते हैं G इंटू 1 माइनस d बाई आर। अगर G1 और G2 का वैल्यू सेम हो जाएगा तो 2h का वैल्यू d के वैल्यू के साथ भी सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग हमेशा याद रखेंगे, अगर G1 का वैल्यू G2 के बराबर है देन डेप्थ जो है ट्वाइस ऑफ द हाइट के बराबर होगा। ये रिलेशन ऑलवेज यूज करेंगे, डेप्थ इज ट्वाइस ऑफ हाइट। सपोज तुमको बोल दिया एट द बॉटम ऑफ अ माइन, एट द बॉटम ऑफ अ माइन अ बॉडी वेट्स सेम, अ बॉडी हैज सेम वेट एज दैट ऑफ एट द टॉप ऑफ अ मीनार। ठीक है, सपोज हम लोग एफिल टावर के ऊपर चढ़ गए हैं, वहां पर जाकर के देखें जो वजन था, जो वेट था, वही वेट हम लोगों का कहां पर है, कोयले के कान में चले गए हम लोग, बहुत अंदर चले गए हैं। वहां पर जाने के बाद देख रहे हैं वेट ऑफ द बॉडी हमारा सेम हो गया, वेट ऑफ द बॉडी सेम। ठीक है, तो वेट सेम अगर हो गया तो इसका मतलब कंडीशन क्या हुआ, जी का वैल्यू सेम होगा, बिकॉज वेट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ जी। अगर जी का वैल्यू सेम होगा तो हमारे पास रिलेशन क्या हो गया, डेप्थ विल बी ट्वाइस ऑफ द हाइट। अगर डेप्थ ऑफ द माइन दिया हुआ 40 मीटर तो हाइट ऑफ द एफिल टावर क्या हो जाएगा, कोई भी मीनार हो सकता है, एफिल टावर की जगह किसी और टावर पर चढ़ जाओ, कोई बात नहीं है, क्या हो जाएगा बोलो, डेप्थ अगर 40 मीटर है तो हाइट कितना होगा 40/2। अगर हाइट ऑफ द मीनार दे दिया है तो डेप्थ यहां से निकाल सकते हैं। तो दिस इज द रिलेशन फ्रॉम विच, बट दिस इज रिमेंबर फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ एच इट कैन बी एप्लीकेबल, फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ एच वी कैन नॉट यूज दिस रिलेशन। तो यहां से इस रिलेशन से हम लोग डायरेक्ट रिलेशन निकाल सकते हैं, डेप्थ दिया हुआ है, हाइट बता दो, हाइट दिया हुआ है, डेप्थ बता दो, डायरेक्ट पुट करेंगे आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से बहुत सारा शॉर्ट ट्रिक्स ग्रेविटेशन के अंदर भरा पड़ा है। अगर थोड़ा सा ध्यान के साथ हम लोग इसको बनाएंगे तो फिर देखना ग्रेविटेशन तुम लोगों को बहुत इजी लगने लगेगा। इसका हर एक क्वेश्चन हम लोग 10-20 सेकेंड के अंदर आराम से कर पाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं आगे और क्या है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का क्या मतलब होता है, किसी भी मास के लिए अगर हम लोग एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, किसी भी मास को अगर हम लोग रखेंगे तो उसके अराउंड एक ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। ठीक है, तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड का एक्सटेंशन कहां तक होता है, हम लोग जानते हैं यहाँ पर जितना भी फील्ड पढ़ेंगे, चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लो, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लो, हर फील्ड का एक्सटेंशन कहां तक होगा, अप टू इंफिनिटी होगा। ठीक है, हर फील्ड का एक्सटेंशन कहां तक होगा, अप टू इंफिनिटी होगा। बट दिस इज द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ओनली, प्रैक्टिकली किसी भी फील्ड का एक्सटेंशन अप टू इंफिनिटी नहीं होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड का थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का बहुत कम होता है। लेकिन फिर भी हम लोग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ये पकड़ेंगे कि एक्सटेंशन कहां तक होगा, अप टू इंफिनिटी होगा। ठीक है, तो एक मास रखा हुआ है, उसके अराउंड एक फील्ड हुआ, कहां तक फील्ड हुआ, अप टू इंफिनिटी। तो उस फील्ड के अंदर हम लोग अगर किसी दूसरे मास को लेकर के आएंगे तो सम वर्क इज टू बी डन। ठीक है, तो वो जो वर्क डन होता है, दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड विद इन द सिस्टम ऑफ द मासेस, दैट इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग अगर सपोज यहाँ एक फील्ड रखा हुआ था, एक मास रखा हुआ था m1, इंफिनिटी से एक मास को लेकर के आए, ला करके यहाँ पर प्लेस किए m2, कितने डिस्टेंस में, r। तो इनिशियल उनका डिस्टेंस कितना था बोलो, इंफिनिटी था। m1 इज द मास फॉर विच द मैग्नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इज क्रिएटेड अराउंड इट। उस ग्रेविटेशनल फील्ड में बाहर से एक मास को लेकर के आए, अंदर ला करके यहाँ रखे, तो वहां से यहाँ आने में जो वर्क होता है, दैट वर्क विल बी स्टोर्ड विद इन द सिस्टम ऑफ दीज टू मासेस इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, U इक्वल टू माइनस जी m1 m2 बाई आर, माइनस जी m1 m2 बाई आर। ठीक है, अगर इन्हीं मास को लेकर के आते हैं, इंस्टीड ऑफ इन्हीं मास को लेकर के अगर हम आते, इंस्टीड ऑफ इन्हीं मास की जगह अगर एक यूनिट मास को लेकर के आते हैं, इंस्टीड ऑफ m2 यूनिट मास को फील्ड के बाहर से फील्ड के अंदर लेकर के आए, इन दैट केस जो वर्क डन करना पड़ेगा, दैट वर्क डन इज नोन एज पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, है ना। अगर हम लोग m2 का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, देन v के जगह में हम लोग u के जगह में हम लोग v लिखेंगे,
दैट विल बी इक्वल टू माइनस gm1/r। तो ये भी हम लोग याद रखेंगे कि अगर किसी मास की वजह से किसी डिस्टेंस के अंदर पोटेंशियल कितना है, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर m1 की वजह से पोटेंशियल कितना है, तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा माइनस gm1/r। ठीक है, और अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे बिटवीन एनी टू मासेस, माइनस gm1m2/r। यहाँ पर माइनस साइन का भी एक सिग्निफिकेंस है। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव या पॉजिटिव का क्या मतलब होता है हम लोग पढ़े हैं, फिर भी बोल देते हैं तुम लोगों को। पोटेंशियल एनर्जी माइनस या प्लस का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव मींस वर्क इज डन बाय द फील्ड। अगर फील्ड कभी खुद से काम करता है तो फील्ड का खुद का एनर्जी लॉस होता है। मेरे पास है, हम काम करने गए, एनर्जी मेरा लॉस हो रहा, फील्ड खुद से काम किया, फील्ड का एनर्जी लॉस हुआ। एनर्जी लॉस के मतलब क्या होता है, वर्क डन विल बी नेगेटिव। तो यहाँ वर्क डन नेगेटिव आने का मतलब हुआ वर्क इज डन बाय द फील्ड। अगर उल्टा करेंगे हम लोग, एक मास रखा हुआ है, दूसरे मास को यहाँ रखे, ये मास उसको अट्रैक्ट कर दिया, खींच करके ले आया अपने पास, तो वर्क इज डन बाय द फील्ड। कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं है जो लेकर के आ रहा है, फील्ड खुद ही खींच लिया, वर्क इज डन बाय द फील्ड, तो वर्क डन नेगेटिव होगा। लेकिन उल्टा होता, यहां से बोलेंगे हम चला जा, खुद से चला जाएगा, हमको पकड़ करके लेकर के जाना पड़ेगा। जब पकड़ करके लेकर के जा रहे हैं हम लोग, वर्क इज डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, फील्ड के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, खींच रहा है, यहाँ पर अगेंस्ट में लेकर के जा रहे हैं, तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा, एनर्जी सिस्टम के अंदर आ जाएगा। इन दैट केस पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स पॉजिटिव। तो यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव का मीनिंग ये होता है, और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव मीन्स वर्क इज डन बाय द फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव मीन्स वर्क इज डन ऑन द फील्ड। ओके, सिमिलरली पोटेंशियल का भी वैल्यू यहाँ पर आएगा, पोटेंशियल विल बी इक्वल टू gm1/r। अगर मास से हम लोग पोटेंशियल को मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये रिलेशन भी याद रखेंगे, u इक्वल टू m2 से जिस मास को लेकर के आए हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो, m2 से मल्टीप्लाई कर दो पोटेंशियल को, देन यू विल गेट द पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सेम चीज अगर हम लोग अर्थ के केस में बोलेंगे तो क्या आएगा, देखो एक मास यहां रखा हुआ था, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, दैट पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय ऑन द अर्थ सरफेस माइनस gm, सरफेस के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, माइनस gm स्मॉल m बाई r। r इज हियर अगेन द सेम मीन डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, यहाँ जितना डिस्टेंस पकड़ेंगे सब मीन डिस्टेंस आएगा, एक के सेंटर से दूसरे के सेंटर तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस माइनस gmm/r, सरफेस के ऊपर चला जाएगा, हाइट h हाइट ऊपर चला गया, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, माइनस gm स्मॉल m/r प्लस h। अब बताओ, अगर हम लोग अर्थ की सरफेस से ऊपर लेकर के जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा या कमेगा, फील्ड के अगेंस्ट में जा रहा है ना, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा, वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो पॉजिटिव वर्क डन हम लोग कैलकुलेट करेंगे, अगर वर्क डन इन लिफ्टिंग द बॉडी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, कितना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया, जितना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया वही तो वर्क डन है। तो वर्क डन अगर कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा, वी हैव टू कैलकुलेट द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, एंड गेन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बाय चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल ज्यादा होगा तभी तो गेन हुआ है, फाइनल से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, फाइनल ये है, इनिशियल ये है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो फॉर्मूला ये रहेगा, देखो g कैपिटल M स्मॉल m कॉमन ले लेंगे, 1/r माइनस 1/r प्लस h, ये आएगा। अगेन अब हम लोग इसको क्या करते हैं, एक रिड्यूस्ड फॉर्म में लेकर के आते हैं। क्या रिड्यूस्ड फॉर्म है, हाइट दिया हुआ होगा, ग्रेविटेशन चैप्टर में जब भी देखो कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, हाइट अगर इन टर्म्स ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ दिया हुआ है तो समझ लो कि वो क्वेश्चन बहुत छोटा होने वाला है, उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक आने वाला है। यहाँ पर भी शॉर्ट ट्रिक आएगा, कैसे आएगा, देखो h इक्वल टू अगर हमारे पास n टाइप्स ऑफ r दिया हुआ है, h इक्वल टू n r पुट करो, r यहाँ से कॉमन आएगा, बाहर चला आएगा, तो g इंटू कैपिटल M इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, g इंटू r स्क्वायर। तो नीचे का एक r कैंसिल हो गया, यहाँ पर बच गया mgr, यहाँ पर बच गया 1 माइनस 1/n प्लस 1, एलसीएम ले लो, सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगा n/n प्लस 1 mgr। दिस इज गेन इन पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन। अब कभी क्वेश्चन तुम लोगों को दिया हुआ रहा, कैलकुलेट द वर्क डन
when a body is lifted through a height equal to the radius of the earth. Calculate the work done when a body is lifted through a height twice of the radius of the earth. What is the gain in potential energy if a body is lifted through a height half of the radius of the earth from the surface of the earth? Then you can always calculate the value just knowing the value of n. n क्या है? n हमारा दिया हुआ होगा, बता दो n क्या है. अगर n का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, सपोज हम लोग से फॉर एग्जाम्पल हमको क्वेश्चन में दिया h इक्वल टू r, इतना हाइट ऊपर लेके चले गए हम बॉडी को. हाउ मच इज द गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? ऊपर जा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ेगा. ऊपर चले गए, कितना हाइट ऊपर चले गए? इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ. गेन इन पोटेंशियल एनर्जी बता दो. गेन इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? यू जस्ट गेट द वैल्यू ऑफ एन. एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है. तो वर्क डन निकालने के लिए बोला या फिर गेन इन पोटेंशियल एनर्जी बोला, तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी बोलो या वर्क डन बोलो. कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला आ गया हमारे पास. हर एक पार्ट के लिए यहाँ पर एक एक शॉर्टकट फॉर्मूला है. अगर ध्यान दोगे तो ग्रेविटेशन का एक भी क्वेश्चन तुम लोगों से नहीं छूटेगा. एन का वैल्यू कितना है बताओ? 1 पुट करें यहाँ पर. 1 by 1 plus 1 that is 2. वर्क डन इक्वल टू 1 by 2 mgr. ठीक है. अगर क्वेश्चन हम लोगों को दे दिया सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मच वर्क इज डन टू लिफ्ट अ बॉडी थ्रू अ हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ. हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ. एन का वैल्यू कितना पाए हम लोग यहाँ पर? n इक्वल टू 1 by 2 आ गया. n का वैल्यू 1 by 2 पुट कर दो. 1 by 2 डिवाइडेड बाई 1 by 2 प्लस 1 दैट इज 3 by 2 है ना. वर्क डन निकालने के लिए बोला 1 by 2 डिवाइडेड बाई 1 by 2 प्लस 1 ऐड कर दो. 1 ऐड कर दो, कितना मिला? 3 by 2 mgr. तो 2 कैंसिल हो गया. 1 by 3 mgr. समझ में आ रहा है? क्वेश्चन कितना आसान है. अगर ग्रेविटेशन का क्वेश्चन इतना ही आसान आने लगा तब तो कोई बात ही नहीं है. हर क्वेश्चन को करते चले जाएंगे हम लोग, है ना. देखो बहुत आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. सिर्फ कुछ जगह ट्रिक्स है, वो ट्रिक्स को हम लोग को याद रखना है. एन के फॉर्म में जहां क्वेश्चन चला आया तो समझ लो कि क्वेश्चन बहुत आसान होने वाला है. एन का जस्ट वैल्यू पुट करेंगे, यू विल गेट द आंसर. समझ में आ रहा है? अगर हम लोग देखो इससे और कितना सारा क्वेश्चन को बहुत आसानी से हम लोग बना सकते हैं. सपोज अर्थ दिया हुआ है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. अगर तुम लोगों को बोला यहां से एक बॉडी को लिफ्ट करो थ्रू एनी हाइट, कोई भी हाइट लिफ्ट कर लो, हाउ मच वर्क विल बी डन? हाउ मच विल बी द गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? गेन इन पोटेंशियल एनर्जी निकालने का बात हो रहा है, वर्क डन निकालने का बात हो रहा है. मेरे पास फॉर्मूला है. क्या फॉर्मूला है? n by n plus 1 mgr. सिर्फ n का वैल्यू पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर. ठीक है. अगर क्वेश्चन उल्टा कर दिया, you are asking to find the height. Find the height when a particle is projected with some velocity. ठीक है. एक वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया जा रहा है. अब बता दो कि उसको कितना हाइट ऊपर जाना है. दिस वेलोसिटी इज गिवन. दिस वेलोसिटी इज गिवन. कहां तक जाएगा? सपोज यहां तक चला गया. ठीक है. तो अगर ये हाइट निकालने दे दिया तो फिर हम लोग कैसे बनाएंगे? तो फिर हम लोगों को बनाने का क्या रिलेशन आ जाएगा? अगेन हम लोगों के पास एक रिलेशन है. व्हाट इज द रिलेशन? जो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है वो कहां से हो रहा है? बॉडी को नीचे से फेंका जा रहा है ऊपर विद सम वेलोसिटी. वही वेलोसिटी की वजह से तो ऊपर जा रहा है. तो जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा इसका काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. तो एज ग्रेविटेशनल फील्ड इज द कंजर्वेटिव फील्ड. कोई भी प्रॉब्लम एनर्जी कंजर्वेशन से यूज करके हम लोग बना सकते हैं. एनर्जी कंजर्वेशन यूज करो. गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, हाइट निकालना है. v वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया गया है. हाइट कैसे निकालेंगे? लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचा वेलोसिटी बिकम 0 तो टोटल काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गया है. लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² एंड दैट इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी. गेन इन पोटेंशियल एनर्जी बता दो क्या है? n by n plus 1 mgr. ये फॉर्मूला हम लोगों के पास है. जब भी गेन इन पोटेंशियल एनर्जी की बात बोले हमेशा ये फॉर्मूला हम लोग यूज करने के लिए रेडी रखेंगे. ठीक है. तो यहां से बता दो mm कैंसिल हो गया. v² इक्वल टू कितना होगा? n plus
n/n+1 का रूट इंटू 2gr। दिस इज द रिलेशन। अब अगर हमको v दिया हुआ रहेगा तो यहां से n निकाल लेंगे, अगर हम लोगों को v का कोई भी वैल्यू दिया हुआ रहेगा n निकाल लेंगे तो हाइट पता चल जाएगा। ठीक है, सपोज हम लोगों को एग्जांपल के तौर पर वैल्यू दिया हुआ है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विद द वेलोसिटी √g r। हाइट बताओ तो कितना ऊपर तक जाएगा, तो हाइट हमको कैसे निकालेंगे, v का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, √g r, यहाँ कितना आएगा 2n डिवाइडेड बाई n+1 इंटू √g r। स्क्वायरिंग कर दे रहे हैं, दोनों तरफ से रूट हट जाएगा, g r का वैल्यू कैंसिल हो गया, 2n इक्वल टू कितना आया n+1, तो n का वैल्यू कितना आएगा 1 आ गया। n जैसे ही मिला हाइट बता दो, अब हाइट इक्वल टू कितना होगा n इंटू r ही तो था, यही तो था, n का वैल्यू निकल गया, पुट कर दिए हम लोग h इक्वल टू r। तो कितना हाइट जाएगा, दैट हाइट विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ जो भी स्पीड दिया हुआ होगा, जो भी स्पीड दिया होगा यहाँ पुट कर देंगे, यू विल गेट जी आर, बोथ साइड से कैंसिल हो जाएगा, जस्ट गेट द वैल्यू ऑफ n एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर हम लोगों को क्वेश्चन दिया, यही क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ v मान लो, v वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया गया है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल, देन आल्सो वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम जस्ट गेटिंग द वैल्यू ऑफ n। n का वैल्यू यहाँ से पता लगाओ, n अगर निकल जाएगा, n का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, हाइट भी पता चल जाएगा। ठीक है, सपोज हमारे पास रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन यूज करेंगे हम लोग, v स्क्वायर इक्वल टू n/n+1 2gr। ठीक है, तो n+1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, n+1 इक्वल टू आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किए n इंटू 2gr/v स्क्वायर। ठीक है, तो हमको n का वैल्यू निकालना है, n वहां लेकर के जाओ, n कॉमन ले लेंगे हम लोग, क्या बचा हुआ रहेगा 2gr/v स्क्वायर -1 इक्वल टू 1, तो n बिकम्स इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। ठीक है, अगर हम लोग यहां से क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, v स्क्वायर, v इज द वेलोसिटी विथ विच अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, कितना हाइट तक जाएगा, हाइट बता दो, तो हाइट इक्वल टू क्या होता है n इंटू r होता है। ठीक है, तो हमको तो n का ही वैल्यू चाहिए ना, n कैसे निकालेंगे, वी हैव द रिलेशन v इक्वल टू दिस वन, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए हम लोग, तो v स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा n/n+1 2gr, n/n+1 2gr, तो n+1 क्रॉस मल्टीप्लाई किए यहाँ पर n+1। ठीक है, n+1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, v स्क्वायर को यहाँ लेकर के आओ, n को वहां ले जाओ, n कॉमन ले लिए, 2gr/v स्क्वायर -1 इक्वल टू 1 बचा, तो n का वैल्यू कितना आया, एलसीएम ले लो v स्क्वायर, यहाँ चला गया, तो v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2gr माइनस v स्क्वायर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइट, हाइट क्या होगा, n इंटू r ही तो होगा, n का तो वैल्यू निकल गया, r से मल्टीप्लाई कर दो, v स्क्वायर r डिवाइडेड बाई 2gr माइनस v स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को इस तरह से सॉर्ट आउट करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन जितना भी रहेगा ग्रेविटेशन का, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम हम लोग 10 से 20 सेकंड के अंदर उड़ा करके रख देंगे। बहुत सारा ट्रिक्स इसमें भरा पड़ा है, इस तरह से देखना, जितना क्वेश्चन आएगा सिर्फ n के टर्म्स में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो, कोई बड़ा कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है। जितना बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आएगा सबको हम लोग कंप्रेस करके छोटा करेंगे। ठीक है, यहाँ आज हम लोग यहीं पर आज क्लास यहाँ तक रखते हैं। इसका नेक्स्ट लेक्चर भी हम तुम लोगों को देंगे, नेक्स्ट पार्ट इसका देंगे। अगर ये क्लास तुम लोगों को अच्छा लगा हुआ हो तो इसको जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करो, जितना ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको जान पाए, इसका लाभ उठा पाए, ताकि हम और ज्यादा से ज्यादा वीडियो तुम लोगों के लिए बना सके और ज्यादा से ज्यादा तुम लोग भी लाभ उठा पाओ। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को कोशिश करेंगे कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, ताकि हम और तुम लोगों का जो रिक्वायरमेंट्स हो, जहाँ पर फिजिक्स से प्रॉब्लम हो, जरूर भेजना, कमेंट से माध्यम से हमको बताना कि क्लास हमको कैसा लगेगा और क्या इंप्रूवमेंट करने का जरूरत है, ताकि तुम लोगों को फिजिक्स में मार्क्स उठाने के लिए हम जितना हेल्प कर सके करेंगे। और जरूर तुम लोगों का मार्क्स इतना 160 से ऊपर आएगा, 170 तक मार्क्स ला सकते हो, 180 तक मार्क्स ला सकते हो। नथिंग इज इम्पॉसिबल। ठीक है, इम्पॉसिबल इटसेल्फ इज आई एम पॉसिबल। तुम हाथ बढ़ाओ, आगे बढ़ो, जरूर तुम लोगों को कामयाबी मिलेगा। ओके, आज यहीं तक के लिए रखते हैं हम लोग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हमारा बहुत जल्द आएगा।